Good evening and welcome everyone to Taking the Stock episode 8. We again welcome Mr. Rennie George today. He was our distinguished first guest in the first talk show of the first episode of Taking the Stock. In fact, he was instrumental in giving this talk show the name Taking the Stock. So, welcome, Reni. And first of all, let me thank you. Despite your busy schedule of Baroda Marathon, I would like to tell everyone that Baroda Marathon is one of the biggest sporting events of our city, Vadodara. And Reni is one of the organizing committee members of the same. So, tomorrow morning is the marathon around 5 o'clock, I think. So thank you, Rennie, for being available for us for this talk show and giving us opportunity to host you again, despite your busy schedule. Vishal, thank you very much for giving me the opportunity. I know it was a busy schedule. I just reached home and in the nick of time, you can see me. I am still wearing my tracksuit, arranging the pacers and everyone. After I come and morning, yeah, it will be 3:30. I will be leaving my home to look after the arrangements of the cities and then going for the marathon. So it is tough, but you need to do whatever you are doing, you need to do. It is same like Nirmala Sitharaman. She needs to give out the budget, whatever the problem is on a particular date. So there can't be any excuses for those things. Same like that. Thank you very much. So it is a great opportunity to be here again. After I think so, most probably an year or two, 2 years at least. The Yes. stocks that I gave, some are multi-baggers, some have given 300, 200% returns. And I'm happy if your clients have earned from that. Yes, yes. Many of them we can remember BSC, Ambika Cotton, and we would like to hear about some upcoming ideas and themes later in the podcast. But let us bite the bullet and starting with the most important question of the evening. Did you get time to analyze the budget 2025 on the first go? How do you, what do you feel about the budget? Was it a good budget? And what are your first reactions about the budget? Vishal, if I speak in terms of, a Bollywood movie or any movie that you are watching, we go to watch a movie for 3 hours. Some may like the movie, some may not like the movie, and some may get emotional during the movie. But all that gets over in the 3 hour. The Correct. next day, we are as again doing our household chores, going to our work, and the life becomes usual. The Correct. movie is completely erased from our mind. Correct. Budget is somewhat like that. On the day of the budget, some may cry, some may laugh, and some may feel, oh, what has happened? But for the next day, they will forget every these things and they will just get back to your normal core. Budgets has to be treated like that only. Yeah, there can be changes that budget brings in, but when you are looking at a stock, when you are investing into a company with the fundamentals and everything, the budget is just a minor blip on that chart that you see, where a certain resistance may come. But ultimately, a good stock will move upwards after breaking the resistance. Hmm. Uh, Regarding this budget, the budget for 25-26, I found this budget pretty good on various parameters. Apart from that, this budget was pretty easy for me to analyze. Okay. I So, would like to hear more. I mean, why it was very easy for you to analyze. yeah, it was very easy for me to analyze because, Nirmala ji did one thing. Always, I always feel whenever you are making the budget, you should not tinker to the taxes and other structures very often. Whatever be the taxes, even if it is a GST tax or a windfall tax or anything. Normally, I am always of the view that taxes should be constructed in such a way that it should work for 4 to 5 years continuously. Okay. Because when you have a long-term structure bracket of taxes, you have a better planning system.
Now that is same available for companies, and that same can be done for personal also, because you have a before and picture of the period. Nirmala ji, what she did not tanker with any GST rates anywhere. If we take into some companies regarding tobacco, the sin companies that we call, but even the sin company taxes were not touched. And I didn't find this happening in the previous governments. Because previous governments, I have the record of watching all the taxes that we go through the budget, and all the previous governments were somewhere a sinner when they frequently used to tinker with the sin tax, that is the tax of the higher bracket that we put company like liquor and tobacco companies. Here, if you see, though they are giving one of the highest taxes to the Indian government, Nirmala ji did not feel anywhere the pressure to tinker the tax structure for those companies. So we can say it was a good budget, frankly speaking. Okay. And And one more thing that I would like to add is she hit the hammer where it was needed, particularly. That was by putting more money for consumption into the people, retail people, middle class people, and that. okay. So, how do you see this raising the income tax bar to 12 lakh? And will it be actually effectively 12 lakh, or is it 0 to 4 lakh? A little bit input if you can give on that subject. So, how 12.75, I guess, is the magic number, right? Which can be the tax-free income for an individual. So now let us first understand how income tax works for this particular. Okay. When multiple slabs are there, I will tell you, suppose a guy is earning 25 lakhs rupees, okay, and the tax bracket he falls into is 30%. So Yeah. he is not paying the 30% for the whole 25 lakhs rupees. Now suppose let us take his first 4 lakhs rupees. On That is 4 zero. lakhs, it is 4 lakhs he is eligible for 10% tax. So what happens? From 0 to 4 lakhs, 10% that goes into 40,000. Hmm. Now suppose if we commend it into fully 30%, so then it becomes 1 lakh 20,000. But it is not 1 lakh 20,000. For the first 0 to 4 lakhs, he will be paying 40,000 rupees tax, and same way. So people were today too much confused about how she can tell till 12 lakh 75,000 there is no tax. Actually, the brackets were put up for people who are moving into the higher tax bracket after certain income. So Hmm. that comes into the calculation picture. So under the new tax regime, we need to understand one thing: 12 lakhs of income is free of tax. Okay. That is the main point that we need to understand. So the general public of India has more money to use, more money to spend, and that is how it drives consumption. Correct me if I'm wrong. Yeah, when a retail investor, or forget about retail investor, or a common people like consumers like us, instead of 10 rupees, suppose we have 50 rupees in our pocket, we can do consumption for 20, 30 rupees, savings, another 20 rupees savings. So earlier I had 10 rupees for consumption. Now I am having 30 rupees for consumption. So what happens? Naturally, the consumption is going to increase. It can be in any form. It can be having food outside, watching a cinema, buying a car, or for bringing in more food items on my table. It can be anything. All these things are consumption items. The TV that I was thinking of buying, but I was not having the budget. So this extra income will help me in buying that TV. Same with goes with car. So naturally, more income on the table of the consumer, it helps him to take those consumption decisions pretty fast, which he might have been delaying due to cash crunch or any other things. So that is one of the reason why we saw FMCG products, especially FMCG and some auto companies, doing quite well today on the browsers. Absolutely, absolutely. If we have seen the last 6 months of pattern,
FMCG companies were forced to increase the cost of their product due to input cost. So, and they were somewhere feeling the pinch. They were reluctant somewhere to increase the cost to comparatively higher region due to demand slowdown. Hmm. And even for cars, if we look at the inventory that the dealership were handling, the inventory was 100 days inventory, which is too large an inventory for a country like us, which is growing Hmm. up very fast. So this will help them release the inventory, and this will also give a great fillip to the car manufacturers, to the bike manufacturers, to the consumption. Consumption has naturally to increase. When people are left with more money on the table, it naturally finds its way to consumption. And it helps companies like Palmolive, Jyoti Laboratories. Then we have various other company like Maruti is there. Even if I take the newly listed companies, that is Hyundai, car companies, bike companies are there, Bajaj Auto is there, TVS is there. Consumption is going to increase. Consumption is surely going to increase. And let us check one thing. Nirmala Sitharaman has given a huge jump. What I am talking about, from 7 lakhs to 12, going to 12 lakhs. That is nearly, if you say, is more than a 75% increase, which never had been done earlier. Earlier, the governments would hardly tinker with 1 lakh extra or 1.5 lakhs or something like that extra. Hmm. But this is a huge, so the consumption basket is going to be increasing suddenly many folds. I see that in the picture in the next coming 1 or 2 years. Okay. Now we understand that there are many balls to juggle when it comes to the budget. I mean, FM is juggling with many balls. So one thing where I felt the capital goods stocks, they just fell like nine pins today. Uh, Correct me if I'm wrong, but the fiscal for FY 26 is at 11.4, 11.32, I think. So is that as per the expectation? Were you expecting that, or that was one point जहां पे थोड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ काफी सारी कंपनीज को? Uh, अगर हम if we are taking the picture of capital goods, the disappointment was natural to happen. Now ओके. let us look into the last 2 years of capex, capital expenditure that we. A capital expenditure comes when there is growth structure and the companies do greenfield expansion and other things. Hmm. After the corporate tax been reduced to 25%, the government thought that many companies would go into a serious capital expenditure, but then that never happened. What Hmm. did the companies do now? They tried to reduce their debt. It was a catch-22 situation for them. So instead of going for greenfield capex, they went to reduce their debt, and it helped them clean up their balance sheet. Many companies cleaned up their balance sheet in a nice way, Okay. and they were left with no money to do the capital expenditure. In the last 2 years, it was the government which was doing capital expenditure. The capex was into defense, the capex was into aerospace, capex went into solar. So all major capex was done by the government. Hmm. Government also loves that whenever there is capital expenditure, the companies also should come forward and do the capital expenditure. So that is one foremost reason. And let us assume if we take 2 years into the picture, if we take inflation into the picture, the amount that capital expenditure has to be allocated was not that much too high, Okay. particularly. But I won't blame the government for this thing. I would surely blame some industrial groups to they were pretty lethargic in doing capital expansion in the last 2 years, where they had too much of money on the table and they could have gone for capital expenditure. Okay. So this comes out as the one sector which will have a temporary blip, capital goods and other manufacturing that can have a temporary blip, or not to talk about manufacturing, but capital goods, yes. Well, if we take, we need to look at the picture as a whole when Nirmala Sitharaman delivered this budget. Okay. She has given many fillip to the MSME industries.
Hmm. by loan, Mudra, and other loans. And this is Kisan going to, credit yeah, card this is and going things to like give a that. serious fillip to MSME. Now, let us understand, if we take the manufacturing index into the picture, 36% goes from these MSMEs into those indexes. So that is going to grow one for sure. Yeah, large capex, capital expenditure companies, we take Larsen and Toubro, or we take original equipment manufacturers. They may face a temporary blip, but it should not be more than a quarter or two, nothing more than that. Okay. I think so, because once was what happens when the consumption grows, naturally this consumption has to be sustained by capex of the corporate structure. So it will ultimately flow down to the lower levels also. Okay. So it was like government tried to balance between growth and inflation. That is one story that we are getting. What is your opinion about it? Or inflation is not related to this? Uh, no, 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 inflation always, in any budget, let us talk about one thing. Any finance minister, if he or she doesn't take inflation into the picture, then they are always playing with the fire. Because ultimately, what happens whenever inflation data is released every quarterly, every monthly, and that, so Hmm. inflation needs to be inflation was taken into the picture by the finance minister during this decision making also, and we can see that also, particularly by leaving more money into the hands of the people. So inflation is a part of any budgetary calculation. Yeah, though it is taken care by the Reserve Bank of any country, which meddles more with the inflation, and they set the ground rules for controlling the inflation. But it has a part to play in the finance ministry budget always. Okay. And the FY 26 fiscal deficit at 4.4, आप उससे comfortable हो या उसमें वो point पे? Absolutely, absolutely. I am pretty happy because Okay. if we take FY25 into the picture, going from 4.8 to 4.4, it is a very good thing. 4.4, I am pretty happy with it. Anything below 4, oh, that would be awesome. But yeah, 4.4, it is pretty good. And the government, looking at the way the budget has been made, I think so 4.4 is achievable by them. It can be done by them. So can we say that the government is looking at sustainable growth? Maybe we can slow down below 7 this year, but for a long term, controlling the fiscal deficit is very important. Look, technically जीडीपी की मैं speaking, बात for कर रहा a हूँ. या अगर हम ये बात करें कि कितना हमें ग्रो करना है, तो जो हमारी क्षमता है, हम उससे हम्म. कम ग्रो कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम तो है। करेक्ट. उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को भी वो पता है, रिजर्व बैंक को भी पता है कि वो क्यों कम ग्रो कर रहे हैं। इंडिया को अगर अच्छी तरह से compete करना है विथ चाइना और ग्लोबल कंट्रीज लाइक यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज, हमें 7% के ऊपर तो ग्रो करना ही करना है। एंड उसका माहौल बनाना बहुत जरूरी है। ओके. मुझे लगता है कि ये अगले 2 क्वार्टर्स में भी हमारा ग्रोथ 7.7 टच करे, मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है। मैं आश्चर्यचकित रह जाऊंगा अगर 7 टच कर रहा है तो। हमारा ग्रोथ कोई शायद 6.5% से 6.8% से ज्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रो करने के लिए इनिशियल क्या होता है, कभी भी कोई कंजम्पशन आता है ना, तो बजट का जो स्ट्रक्चर होता है वो तुरंत ही इफेक्टिव नहीं होता है लोगों के पास। उसको एक क्वार्टर लगता है, टाइम लगता है। हम्म. तो 7% के ऊपर तो इंडिया को ग्रो होना ही होना है, उसमें दो राय नहीं ले सकते। अगर 7% के नीचे हम ग्रो कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि हम और क्या तरीका इस्तेमाल कर सके कि हमारा ग्रोथ काफी अच्छा हो। ओके. तो आपको लगता है कि ये जो बजट है वो उस दिशा में एक पहला कदम है या एक सक्षम कदम है? कदम तो है। देखिए, ओके. एक सिंपल सी चीज है। जब आप कंजम्पशन को बढ़ावा दे रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप कंपनी को मजबूर कर रहे हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। आज सोचिए, हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट देखते हैं, हमारे जो कंपनी होती है उनकी एक क्षमता होती है जहां पे वो कंपनीज चलती है। जैसे मिल है, अभी कार मैन्युफैक्चरर है, और कार मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता 100% है, 100वीं सदी है।
पर वो कंपनी को सिर्फ 60वीं सदी क्षमता तक ही इस्तेमाल कर रहा है, हम्म क्योंकि डिमांड नहीं होता है, कोई उसके कार लेने को लिए तैयार नहीं। पर अगर उसके कार का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो वो कंपनी क्या करेगी, वो अपनी क्षमता से बढ़ेगी। बराबर। हम्म अभी एक जगह उन्होंने प्लांट डाला है, वहां से लगता है कि उतना कार बन नहीं पा रहा है जितना उन डिमांड बन रहा है। तो वो हम्म कंपनी क्या करेगी, वो कैपेक्स पे जाएगी, नया ग्रीनफील्ड प्लांट डालेगी, नए जगह सेटअप करेगी। अब अल्टीमेटली ये क्या होगा, जब नए जगह सेटअप हो रहा है तो नौकरियां जुड़ती है, लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलती है। सो ये नौकरियां मिलने की वजह से उनके पास भी पैसे आ रहे हैं, तो वो भी फ्यूअल करता है कंजप्शन को। सो ये एक चक्रव्यूह है जो चलते रहना चाहिए। हम्म। Or we are seeing that the world might be after the era of globalization. It is little bit taking a steps after Trump coming into power towards localization. राइट, अमेरिका भी मेक इन अमेरिका की बात कर रहा है। यूरोप की इकोनॉमी अभी भी थोड़ी कमजोर चल रही है। साउथ ईस्ट एशिया ग्रो कर रहा है, इंडिया भी ग्रो कर रहा है, उतनी स्पीड से नहीं ग्रो कर रहा है। चाइना भी उतनी स्पीड से शायद नहीं ग्रो कर पाए, या थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। चाइना भी अपना ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। हमने रिसेंटली देखा था। तो दो क्वेश्चन है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ से क्या हम लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? और द क्वेश्चन नंबर टू इज, यू कैन आंसर वन बाय वन। एंड द क्वेश्चन नंबर टू इज, आरबीआई ने अभी काफी लिक्विडिटी डालने की कोशिश की है बॉन्ड्स खरीद के लास्ट वीक में। तो ये भी एक अच्छा कदम है आरबीआई का, और इससे बैंक और एनबीएफसी में थोड़ी मजबूती आएगी। दोनों अलग क्वेश्चन है, बट यू कैन आंसर देम वन बाय वन। ठीक है, मैं विशाल जी आपका पहले सवाल जो है उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी देश के लिए लोकलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, जब तक कि वो फाइनेंशियल सुपर पावर ना हो। अगर आप फाइनेंशियल सुपर पावर हो तो क्या कर सकते हो आप कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग मूव कर सकते हो, क्योंकि हम्म आपके पास फाइनेंशियल पावर है, आप डिसीजन मेकर हो, और आपके यहाँ इंटेलेक्चुअल पावर है। यूएसए का कैसा है, यूएसए हैज दैट फाइनेंशियल पावर, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड जितना भी होता है मोस्टली डॉलर डिनोमिनेशन में होता है। इवन हमारा ऑयल का हम देखें, ऑयल इज डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड्स। तो डॉलर इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी फॉर दैम। अनदर थिंग इज, यूएस का एक और बेनिफिट क्या है, यूएस इज अ प्लेस वेयर रिसर्च हैपन। बहुत सारी कंपनियों में रिसर्च होता है। तो जो यूएस ने जो 20-30 साल पहले क्या किया, उन्होंने दे टुक पार्ट इन दो बड़ी चीजों में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप हम्म देखो, गूगल है, ये कंपनी जितने, फेसबुक है, मेटा है, ये सारे कंपनी का रिसर्च में काफी अच्छा पैसा खर्च हुआ है। जिस तरह से हम अगर सोचे, अमेजोन ने जो रिसर्च करके, AWS, दैट इज अमेजोन वेब सर्विसेज, जो उनका काफी अच्छा अर्निंग्स बढ़ चुका है क्लाउड कंप्यूटिंग वजह से। पर ट्रम्प क्या चाहता है, ट्रम्प वापस वही चाहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी यूएस में मूव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे कहीं नहीं लगता कि वो एक सही डिसीजन है। या तो ओके। लेने के कोई मतलब नहीं बनता उसको मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी उनको कंपैरेटिव कॉस्ट चीपर बाहर है। तो हम्म आप अपने ही इस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग मूव करके काय को कॉस्ट बढ़ा रहे हो कुछ चीजों का, जिसका हम्म कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि हम्म यूएस को पे करना होता है उनके डॉलर का, और उनका डॉलर इतना स्ट्रांग है, तो ना जो आउटगोइंग उनका ज्यादा होता है। हम्म ये जरूरी है। अब आपका दूसरे सवाल पे, आरबीआई ने ये कहा कि जब उन्होंने डॉलर के सामने रुपये का लूजन होना और डॉलर्स को ज्यादा बेचा मार्केट में, हम 2-3 महीने का पिक्चर ले लेते हैं जरा, जस्ट बार। अभी क्या हुआ, आपने देखा हुंडई कंपनी अपना एफपीओ लेके आया। करेक्ट। अब हुंडई ने क्या किया, एफपीओ था, 25,000 करोड़ मार्केट से निकाले, ठीक है। अब 25,000, दिस इज रिपाट्रिएटेड मनी, मतलब ये 25,000 उन लोगों को उनके करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर लेके गए। कोरिया लेके गए। हाँ, सेम काफी सारे एफआई एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जैसे कि जोमेटो कंपनी देख लीजिए, जो भी लास्ट 6 या 8 महीने में जितने भी कंपनी लिस्ट हुए ना, उसमें जितना भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट था, वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट जब रिडीम करने का टाइम हुआ तो वो बाहर लेके गए। इसकी वजह हम्म से नेचुरली क्या है, डॉलर की खरीदी बढ़ गई, डॉलर की खरीदी बढ़ने से डॉलर और स्ट्रांग हो गया रुपये के सामने। हम्म
पर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एफडीआई अंदर आएगा तो एफडीआई बाहर भी जाए, क्योंकि उनका एक पैसा बुक करने का तरीका होता है, प्रॉफिट बुक करने का तरीका होता है। हम्म, बट हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया इज अ कंट्री जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत काफी है। कि जो हम्म। जस्ट मिनट। या सो आरबीआई अपने तरीके से काफी, आरबीआई ने अभी एक तरीका किया था जहां पे बैंक्स को उन्होंने काफी लीवे दिया था, जिसके वजह ऑफ टर्निंग पेपर्स, जहां पे बैंक पैसा लेती है आरबीआई के पास से ऑन डॉलर्स एंड अदर थिंग्स। तो उसमें जो पीरियड था, 3 या 4 महीने का पीरियड दिया है, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल टू द बैंक्स। और दूसरा एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि लास्ट सितंबर 24 से लेके अभी तक एफडीआई की आपने बात की, सही है कि भाई रिडीम करने का टाइम होता है, वैसे एफआईआई भी जो इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में डायरेक्टली या इक्विटी में या इनडायरेक्टली, उसको भी रिडीम करने का टाइम होता है। तो सितंबर से लेके जनवरी तक हम देख रहे हैं कि एफआईआई काफी स्टॉक्स बेच रही है। इवन आज के दिन भी मेरे ख्याल से 1300 करोड़ के ऊपर उन्होंने के स्टॉक्स बेचे हैं, नेट जो था। तो ये क्यों हो रहा है और इससे क्या हमको कुछ डरना चाहिए या इन्वेस्टर्स को इससे थोड़ा घबराना चाहिए? व्हाट डू यू फील अबाउट द एफआईआई विच इज सेलिंग कंटिन्यूअसली सिंस सितंबर इन द इंडियन मार्केट्स? इसमें दो चीज का ध्यान हमें देना है। पहला चीज है कि कोई भी एफआईएस जब कंपनी डॉलर लेके आती है ना, तो हम्म, उनको डॉलर करेंसी में ही उनका ग्रोथ चाहिए होता है। हम्म, अब अगर हम 10 ईयर का बॉन्ड का रेट देखें यूएस में, जो 10 ईयर यील्ड बॉन्ड है, इट इज अराउंड 4.5, दैट इज डॉलर डिनोमिनेटर। जो कि अब 5 कंपनी भी हो यही गया था थोड़े टाइम पहले। या दैट इज अ शॉर्ट पीरियड। हम्म, अब ये जब कंपनी इंडिया में आती है, हमें वो पैसे भले डॉलर्स में लेके आती है, पर वो लगाती है रुपीज में कन्वर्ट करके। हम्म, तो अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है अगेंस्ट डॉलर, तो उनके लिए नुकसानकारक है। हम्म, दूसरी एक और चीज हमें समझनी है कि आखिर लास्ट 2 साल में, 1 साल में ऐसा क्या हुआ है कि दे बुक टू मच ऑफ प्रॉफिट। हम्म, ये जो करेक्शन हुआ लास्ट, अभी जब 10-15% का जो करेक्शन हुआ निफ्टी में, उसके पहले अगर साउथ ईस्ट एशिया देखे, तो वी वेर वन ऑफ द एक्सपेंसिव मार्केट्स इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। हम्म, सो एवेन्यूज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारा दोनों का काफी बार डिस्कशन हुआ है कि वी वर नॉट फाइंडिंग गुड एवेन्यूज टू इन्वेस्ट, हम्म, बिकॉज समवेयर द प्राइसेस वर टू हाई। हम दोनों ही कंफर्टेबल नहीं थे, मैं तो खास करके नहीं, अभी भी नहीं हूं मैं कंफर्टेबल। आई वुड स्टिल वेट फॉर सम करेक्शन। बट हाँ, देर आर मेनी पॉकेट्स, कुछ जगह है जहां पे स्टॉक्स काफी अच्छे चीप हुए, वेर यू कैन बाय दैट आउट। उसके बारे में सो भी हम बात करेंगे। हाँ, बट एफआईएस नेचुरली दे हैड वेरी गुड प्रॉफिट्स, दे पिक्ड आउट प्रॉफिट्स। पर पता नहीं है, शायद वो वापस एक्सपेंसिव मार्केट में घुसेंगे। एंड एफआईएस ने सोचा नहीं था कि इतना इंडियन मार्केट को इतना सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आज 12-13 साल पहले मैं अगर बात कहूं, अगर हम्म, एफआईआई का इतना सेलिंग होता, तो मैं इंडियन मार्केट को 30% डाउन देख रहा होता, कम से कम 30%। उसके ओके। कंपैरेटिवली सिर्फ 10-12-13% डाउन है फ्रॉम द टॉप। हम्म, तो मतलब एफआईआई या तो एक्सपेंसिव मार्केट में वापस आ सकते हैं या तो और उनको थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव मार्केट शायद, अगर यहाँ से हम अगर गिर नहीं रहे और हम यही स्टडी पकड़ के रहे, जो टाइम करेक्शन है, मतलब अगले अगले 6 महीने से 8 महीने हम कहीं भी नहीं जा रहे हो, मतलब 100-200 पॉइंट ऊपर गया, वापस 200 पॉइंट नीचे दिया, जिसे हम कहते हैं टाइम करेक्शन। हम्म, मतलब एक पीरियड तक टाइम करेक्शन, और टाइम करेक्शन होता है, देन यू गेट बैक इनटू द सेम रेट, यही प्राइस पे आप एंटर हो रहे हो 1 साल बाद, और कुछ करेक्ट। नहीं है। ओके। नाउ कमिंग टू द सेक्टर्स जो दैट लुक अट्रैक्टिव टू यू फॉर द ईयर 2025-26, आने वाले 2-3 साल की हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कौन से सेक्टर्स हैं? और उस हम एक वन बाय वन वी कैन स्टार्ट विद द सेक्टर्स विच लुक इंटरेस्टिंग टू यू,
मतलब ये बजट के लिहाज से भी और वैसे भी, कि जहां पे आपने अभी बताया कि भाई देर आर सम स्टॉक्स, देर आर सम काउंटर्स वेयर लॉट ऑफ करेक्शन हैज हैपेंड एंड you might be tempted to start buying in those counters. तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं और ऐसे कौन से स्टॉक है, ऐसे कौन से शेयर्स का नाम अगर आप दे सकते हैं तो? देखिए, कभी भी कोई बजट आता है ना, तो मेरी पहली नजर तो बजट के इसी चीज पे जा रही है कि sin टैक्स कितना बढ़ाया। हम्म। मतलब टैक्स ऑन लिकर एंड सिगरेट कंपनीज, उस पे कितना टैक्स बढ़ता है। नेचुरली ये साल टैक्स कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है, सो इट इज अ पॉजिटिव फॉर कंपनी लाइक आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स, इवन लिकर कंपनी लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है। ये कंपनी के लिए भी काफी अच्छा है। सो दिस कंपनी कैन बी अंडर योर रडार। और ऑलरेडी आईटीसी में से आईटीसी होटल्स डीमर्ज हो चुका है, तो नो मोर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सबसे ज्यादा कैपेक्स का प्लान आईटीसी में रह के आईटीसी होटल्स में ही जाता था, क्योंकि हम्म। इट वाज गिविंग यू द रिटर्न ऑफ जस्ट 3% का रिटर्न दे रहा था, और सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी में यहाँ हो रहा था। सो दे हैव डीमर्ज दैट बिजनेस। सो आईटीसी इज अ गुड बिजनेस, आईटीसी को आप ले सकते हैं। गोडफ्रे फिलिप्स है, ऑल दिस कंपनी कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी काफी अच्छे प्राइस में। आई थिंक सो लास्ट अपने मीटिंग में मैंने कहा था कि ये कंपनी में ध्यान रखिए, इन्होंने अपना डेप्ट कम कर दिया है। और शायद 800 रुपए था लास्ट हमारी बात हुई थी, तो वहां हम्म। से 1600 या 1400 जाके आई है ये कंपनी, और अभी भी जा सकती है, काफी अच्छी ऊपर जा सकती है। दूसरा एक और चीज हमें ये देखना है, जिस तरह से अनाउंसमेंट किया गया है जो पल्सेस और ये सब पे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनीज जो पाइप बना, जेन इरिगेशन नाम की कंपनी है, जो कंपनी खुद भी टर्न अराउंड हो रही है, उसका मैनेजमेंट काफी अच्छा कोशिश कर रहा है उनका डेप्ट कम करने का। ये सारी कंपनी है। इंफ्रा कंपनीज है, जैसे कि डिफेंस में रेलवेज एंड डिफेंस कंपनीज आपको चीप प्राइस पे मिल रही है, तो आप ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी, गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए, और वो गवर्नमेंट करेगी। और दूसरा, इसी के साथ एआई का भी अभी शुरू हो गया है, जिस तरह से एआई इंप्लीमेंट हो रहा है, तो द कंपनीज दैट आर इनटू एआई, जैसे कि ई टू ई नेटवर्क्स है, इनको भी काफी बेनिफिट हो सकता है। कंपनी लाइक एचबीएल पावर सिस्टम्स है, जो कि नाम बदल के अब एचबीएल इंजीनियरिंग हो गया इंजीनियरिंग। है। हाँ, ये कंपनी को भी काफी बेनिफिट है। और इसके अलावा एक और चीज का नोट किया जाए, तो जो पहले 74% एफडीआई था इंश्योरेंस कंपनी में, वो बढ़ के अब 100% हो गया। 100% एफडीआई का मतलब ये है कि कोई भी फॉरेन कंपनी कैन बी 100% ओनर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। हम्म। ये शुरुआत पहले 50% से, वो 49%, 51% से शुरुआत हुआ है, और बढ़ के 100% हो गया है। सो विथ अ बिग कंट्री लाइक अस, इंडिया, जो कि जिसमें 150 करोड़, 144 करोड़ लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो कोई भी बाहर की अच्छी इंश्योरेंस कंपनी आके यहाँ पे दुकान खोल सकती है। इंडियन कंपनीज जिसमें बेनिफिट हो सकता है, एचडीएफसी लाइफ को काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है लिस्टेड कंपनी में, इस पे भी आप नजर मार सकते हो। फिर दूसरा एक कंपनी है जो ऑनलाइन इंश्योरेंस में काफी नाम है, पीबी फिनटेक, आई थिंक सो, पॉलिसी बाजार जो चलाते हैं, हम्म। उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि ऑनलाइन है। तो अब क्या है कि दे कैन ब्रिंग आउटसाइड मनी इनटू इंडिया थ्रू एफडीआई, या तो पूरा एफडीआई 100% उठा सकते हैं। सो दिस थ्री कंपनीज को काफी बेनिफिट है उसमें कंप्लीटली। ओके। ऑटो सेक्टर में आपका कुछ आपने दो नाम तो दिए वैसे, कि भाई टू व्हीलर में आपने टीवीएस का नाम बताया, मारुति और हुंडई का नाम बताया। एनीथिंग एल्स इन ऑटो, ऑटो एंसिलरीज में कुछ? ऑटो एंसिलरीज में अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का देखा जाए, तो मुझे एक कंपनी बेहद पसंद है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैंने यूं तो मैंने भी बाई किया हुआ है, पर मेरे बाई करने से 15% नीचे है वो कंपनी। एसकेएफ इंडिया नाम की कंपनी है, जो बेरिंग्स। ऑटोमोबाइल्स और हाँ, बैरिंग्स बनाती है। बेनिफिट क्या है कि दो तरीके से हमें देखना है, ये कंपनी डीमर्ज हो रही है दो पार्ट में, एक ऑटोमोटिव बेरिंग और एक इंडस्ट्रियल बेरिंग। तो ऑटोमोटिव बेरिंग्स जो वाला है, वो कंपनी अलग हैंडल होगा, और इंडस्ट्रियल बेरिंग्स वाला कंपनी अलग होगा। बेनिफिट क्या है, ये दोनों कंपनी को सिनर्जीज में
नाउ वो अपने हिसाब से प्लान कर सकती है ग्रोथ और अदर थिंग्स। एक दूसरे पे पहले हमेशा एक दूसरे पे बोझ रहता था ये दोनों सेक्टर की वजह से। पर इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव दोनों को अलग करने की वजह से अगर मैं उसका कंबाइंड वैल्यू शेयर प्राइस में गिनूंगा, अभी कुछ 3978 या कुछ होगा। पर अगर कंबाइंड वैल्यू करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं लेने जाऊं तो दोनों का डीमर्ज के बाद 6000 रुपए के करीब दोनों का वैल्यू टोटल साथ में होना चाहिए पर शेयर। सो हम्म। ये एक बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी अच्छे ही है कंपनी का। इट इज अ गुड मैनेज कंपनी दैट इज देयर। हेल्थ केयर को फायदा होगा अगर इंश्योरेंस में 100% एफडीआई आता है। देर आर सम कैंसर लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, उसमें भी काफी राहत दी गई है। तो फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर में कुछ आप ये दो सेक्टर आपको कैसे लग रहे हैं, और इसमें कुछ आप अगर सजेस्ट कर सके तो। हेल्थ केयर में करंटली क्या है कि द प्राइसेस एट विच द हेल्थ केयर इज ट्रेडिंग ना, हम्म। वो थोड़ा सा हाई है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। ओके। पहली बात तो हमें ये जानना है कि इंडिया में हेल्थ केयर हैज बिकम प्रिटी एक्सपेंसिव। लास्ट 5-6 साल में द इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है इट हैज ग्रोन बाय 15%, मोर देन 15% CAGR, जितना कि इन्फ्लेशन भी नहीं है। हम्म। और ये हेल्थ केयर की वजह से काफी लोगों पे भी लोड बढ़ गया है। तो यहाँ पे ग्रोथ तो है, बट जो ग्रोथ, जो टर्म वैल्यू जो कहते हैं, कंपनीज काफी एक्सपेंसिव है। क्योंकि आप कितना भी इंडिया जैसे शहर में भी कोई भी हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी ज्यादा से ज्यादा 75-80% से ज्यादा कभी होती नहीं ओके। पर्टिकुलरली। सो कंसोलिडेशन विल हैपन। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा हेल्थ केयर में, तो वो होना जरूरी भी है। वो कंसोलिडेशन होने के बाद थोड़ा सा प्राइस रेशनलाइजेशन जरूरी है रिगार्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट एंड अदर थिंग्स। मैं ये बजट से एक एक्सपेक्टेशन ये मेरा था कि ये बजट में निर्मला जी शायद इंश्योरेंस पे जीएसटी। GST कम करेगी, बट दैट डिडंट हैपन। बट अल्टीमेटली व्हाट शी मेड इज, उन्होंने कंज्यूमर के हाथ में ही ज्यादा पैसा रख दिया और वो बता दिया कि भैया अभी तुमको इंश्योरेंस लेना है या तुम साबुन खरीदोगे। उस वही यानी डिसीजन सीधे कंज्यूमर पे डाल दिया है। हम्म। इंस्टेड ऑफ शी टेकिंग द डिसीजन शी हैज लेफ्ट इट ऑन द कंज्यूमर कि मैं आपको जेब में ज्यादा पैसा दे दूं, अब आप अपने हिसाब से खर्चा कर दीजिए। आपको पॉलिसी खरीदना है पॉलिसी खरीदिए, या आपको होटल में जाके खाना खाना है तो आप होटल में जाके खाना खाइए। हम्म। अदर देन दैट, हम एक क्वेश्चन शायद रह गया कि आरबीआई ने लिक्विडिटी के लिए, या आरबीआई ने बॉन्ड्स खरीद के रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ किया था, तो इससे कुछ बैंक निफ्टी पे, मतलब बैंक, सम बैंक्स दैट यू हैव इन रडार, या कोई एनबीएफसी जो आपके रडार में हो, या उनको फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर जो बैंकिंग को स्टडी किया हो किसी ने अच्छी तरह, तो लास्ट 2 साल को, 2 साल में उन्होंने देखा हो तो काफी सारे बैंक्स के बैलेंस शीट्स क्लीन हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हम्म। जिनके बैलेंस शीट्स काफी अच्छी तरह साफ हुए हैं। जो कचरा था वो कचरा निकल गया है नाउ, और उनका ग्रोस एनपीए भी काफी लेवल पे नीचे आया हुआ है। हम्म। सो ये अल्टीमेटली बैंक्स को हेल्प करेगा। ये नहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप पैसा अभी डाल रहे हो तो आपके पैसे का 20-30% ग्रो होता ही है। बट आई एम नॉट ऑलवेज हैप्पी विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि उनका हम्म। वर्क करने का तरीका अभी भी सुधरा नहीं है। वो इंडियन मेंटालिटी थोड़ा सा रहता है। पर कुछ बैंक्स है जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो कि काफी अच्छे प्राइस में, लास्ट मैंने क्वार्टरली उनका जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है इट वाज सेम एज द ओल्ड वन, ओल्ड क्वार्टरली। जबकि उसी टाइम पे कंपैरिजन में फाइनेंस कंपनीज एनबीए, स्मॉल फाइनेंस कंपनी देख रहा हूँ, उनका ग्रोस परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी बड़ा था, विच आर इनटू रिटेल लोन्स एंड अदर थिंग्स। हम्म। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैंने देखा नहीं, वो सेम ही रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ गुड कैंडिडेट फॉर दैट ग्रोथ पर्टिकुलरली। एंड बैंक्स में HDFC बैंक इज स्टिल, इट हैज गॉन थ्रू अ हेवी टाइम करेक्शन, काफी बड़े टाइम करेक्शन के थ्रू गया हुआ है। 1700 रुपए में अभी भी मिल रहा है। 15-20% अगर आपको बनाना है तो आप साल का 15-20% HDFC बैंक से बना सकते हैं। कुछ बैंक्स है, मैं हमेशा कहूंगा कि ये बैंक से अभी फिलहाल दूर रहिए, क्योंकि वो बैंक्स पे रिटेल लोन्स का काफी प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड लोन्स और ये सब का।
डेलिंक्वेंसीज क्रेडिट कार्ड में काफी बढ़े हैं पिछले 6 महीने में। तो ऐसे जो बैंक है वो है इंडसइंड बैंक है, आरबीएल बैंक है, ये बैंक से आप फिलहाल एक 6 महीने या 1 साल की दूरी जैसे बैंक का रिटर्न रिटर्न आता है, आप डिसीजन ले सकते हो। बट फिलहाल मैं कहूंगा कि ये बैंक से दूर ही रहे। और बैंकिंग सेक्टर में हमेशा ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट ना करूं, वो सबसे ओके, ज्यादा जानना दैट इज जरूरी अ है। गुड पॉइंट। जी प्लीज तो कंटिन्यू। अगर आप बाहर तो अगर आप उतने बैंक्स आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल देते हैं, तो आप प्रीटी हैप्पी हो कि नहीं, ये बैंक में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बैंक में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सम पीएसयू बैंक्स, एचडीएफसी जो कि एक स्टैंडर्ड बैंक है जिसमें काफी टाइम करेक्शन हुआ है, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ हम उड़ान स्कीम के बारे में भी बात की थी निर्मला जी ने। तो टूरिज्म होटल्स के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे या वो सेक्टर से भी मतलब अभी दूर रहना चाहिए? नहीं, इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि मौके पे चौका मार लो। हम्म। और ये चौका मारने का बहुत अच्छा मौका अभी हाथ में आया है लोगों के। आईटीसी होटल्स जो आईटीसी से डीमर्ज हुआ है, वो उसका प्राइस अभी गिरा है। आप देखिए 180 पे कुछ लिस्टिंग था, 180 से 161 के गिरा है, मतलब 10-12% गिरा है। आज वो एक सौ गिरने के पीछे 170 हो गया आज मेरे ख्याल से, हाँ, जहाँ तक मैं वो जानता हूँ। उसको उसके पीछे पहले हम समझते हैं उसके गिरने के पीछे कारण क्या है। ओके। अच्छी कंपनी है, काफी सारे होटल प्रॉपर्टीज है, वेल मैनेज, तो फिर क्यों गिरा है? गिरा यही रीजन था कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन आईटीसी, वो होटल बिजनेस में रहना नहीं चाहती। उनको होटल बिजनेस से तो जो जो शेयर्स उनको मिले थे डीमर्ज में होटल बिजनेस में, उन्होंने वो बेचना शुरू कर दिया है, और इसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। ओके। बट एट द सेम टाइम इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को ये मौका मिला है, तो दे कैन लैप अप दिस आईटीसी होटल्स। अगर मैं रफली वैल्यूएशंस गिनूं, तो इन अ ईयर और टू आई वुड लाइक अ वैल्यूएशन ऑफ 280 रुपीज पर शेयर आईटीसी होटल्स में। हम्म। हम टोटल मार्केट कैपिटल गिने आईटीसी होटल्स का, तो मुझे लगता है 34,000 करोड़ जितना ही होगा, 34,000 करोड़ से ज्यादा है। और इंडियन होटल्स का देखे तो 1 लाख करोड़ के करीब है। हम्म। तो 100% रिटर्न तो आराम से आईटीसी होटल्स में मिल जाना चाहिए। दूसरा एक और चीज हमें आईटीसी होटल से ये सीखने मिला है, आईटीसी होटल्स ने उनको उनका जो कैपेक्स प्लान है वो कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया है। मतलब अब कैसे ओके। करते हैं वो, या वो होटल बनाते नहीं है, वो होटल ओनर के साथ टाई अप करके दे लुक आफ्टर द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, और जो होटल ओनर है उसको एक परसेंटेज दे देते हैं। इसके वजह से क्या है, आईटीसी को क्या बेनिफिट है, आईटीसी डजंट ब्लॉक इट्स कैपिटल, हम्म। इट गेट्स इट्स प्रॉपर्टी, इट मैनेजेस द प्रॉपर्टी एंड शेयर्स द रेवेन्यू। तो आईटीसी के लिए लास्ट जो 10-15 होटल्स खुले हैं आईटीसी के, आईटीसी ने इसी तरह काम किया। 7-8 आर मैनेज प्रॉपर्टीज बाय देम, हम्म। हार्डली 1 or 2 आर ग्रीन फील्ड। सो दिस हैज बेनिफिटेड देम क्वाइट नाइसली। तो आईटीसी होटल इज अ गुड बिजनेस दैट यू कैन पिक इट अप। एंड अभी का रेट मैं कहूंगा, अभी के रेट में अगर आपके पास पैसा हो तो जाके लेकर रख दीजिए। ओके। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को तो हर बजट में बूस्ट मिलता ही है। सिमिलरली एग्रीकल्चर में इस बार भी थोड़ा बहुत अच्छा बूस्ट देने की कोशिश की गई है। टेक्सटाइल में कोशिश की गई है उसको भी बूस्ट करने की। तो उस फील्ड से, उस सेक्टर से कुछ अगर निकल के आ रहा हो तो? एग्रीकल्चर का अगर देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन और पाइपिंग सिस्टम्स में मैंने पहले भी नाम बताया, जेन इरिगेशन, जो एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है और बन भी सकता है कंपनी। आई विल हैव अ डिस्क्लोजर दैट आई एम इन्वेस्टेड इनटू दैट, आई हैव इन्वेस्टेड माय क्लाइंट्स मनी आल्सो इनटू दैट। So that is the disclosure that, and it is at the current rate only where I have invested. तो वो एक कंपनी है जिसमें आप पैसा बना सकते हो। अनदर कंपनी है अवंती फीड्स अवंती फीड्स करके कंपनी है जो श्रिम्प में है। सो वहां पे आप पैसा बना सकते हो। फिर एसकेएफ एग्स है, वेंकीज है। यहाँ पे प्राइसिंग देखना थोड़ा सा जरूरी है। मैं अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो मैं जैन इरिगेशन को देखूंगा, मैं अवंती फीड्स को देखूंगा, मैं कावेरी सीड्स को भी देखूंगा। कावेरी सीड्स भी अच्छा कंपनी है, काफी हम्म। अच्छा मैनेजमेंट है, तो वो उस पर मेरी नजर रहेगी। पाइपिंग में मैं पैकेजिंग, फिनोल, सॉरी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। या पाइपिंग में जैन इरिगेशन के साथ जो जश इंजीनियरिंग है, फिर
पंप्स जो है, क्योंकि हर खेत में एक पंपिंग स्ट्रक्चर होना जरूरी था। शक्ति पंप्स काफी अच्छा कंपनी है। फिनोलेक्स है, फिनोलेक्स के पाइपिंग्स मटेरियल्स काफी सेल हो सकते हैं। So these are all the companies which you can look into the field when you are investing. पैकेज फूड, उसको भी पुश करने की कोशिश की गई है। पैकेज फूड पुश करने की, देखिए सरकार कोशिश तो हमेशा करेगी पैकेज फूड को पुश करने के लिए, पर हमेशा डेमोग्राफी भी चेंज होती है, कंज्यूमर का डेमोग्राफी और ये स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो पैकेज फूड्स में फिलहाल मैं आई वुड जस्ट होल्ड ऑन, आई वुड लेट द थिंग्स क्लियर लिटिल बिट हम्म। पैकेज फूड्स में। अभी भी फिलहाल हाँ, एक कंपनी है जो आई थिंक सो, दैट इज गोदरेज एग्रोवेट। ओके। मैं दो दो तीन साल पहले इन्वेस्ट किया, और अभी भी आई फाइंड दिस कंपनी प्रिटी एंटरप्राइजिंग, पर्टिकुलरली इन द पैकेज फूड सेक्शन। दूसरा एक पॉइंट ये था कि जब हम पैकेज फूड की बात कर रहे हैं तो नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी भी वहां पे आते हैं नाम उठ के, क्योंकि मैगी से यिप्पी नूडल्स से लेके ये सारे जो ब्रांड्स हैं और ये जो एक डाइट का पार्ट बन चुके हैं ये सारी चीजें। तो नेस्ले वैसे भी एक एफएमसीजी कंपनी है जिसको कंजम्पशन का फायदा होगा। आईटीसी को भी हम एज अ एफएमसीजी कंपनी जिसमें कंजम्पशन का फायदा होगा वैसे देख सकते हैं, और इसको पैकेज फूड के तरीके भी देख सकते हैं कि भाई आशीर्वाद आटा एंड एडिबल ऑयल्स एंड ऑल दैट। तो डू यू कंसिडर दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ कंजम्पशन एंड पैकेज फूड स्टोरी गुड स्टोरी? एब्सोल्युटली। आप देखिए, अभी भी आज का डेट में मैगी का कंजम्पशन इज मोर देन 70%। 18% consumption in the noodles market is done by EP, ITC का जो है, काफी अच्छा ग्रो किया है। और एंड टेकिंग 18% मार्केट शेयर फ्रॉम मैगी मैगी इज नॉट इज एन अ इजी, बिग थिंग। इज नॉट एन इजी थिंग। तो पैकेज फूड में वो तो रहेगा ही। और खास करके जिस तरह से हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वर्किंग क्लास जो बढ़ रहा है, जहाँ पे मियाँ और बीवी दोनों काम पे जा रहे हैं, वहां पे पैकेज फूड्स का स्ट्रक्चर अभी डेवलप होगा ही धीरे धीरे। जो यूएस में हम 30 35 साल पहले देखते थे, वो धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है अभी पैकेज फूड्स का। कॉफी भी तो वहां पे फटाफटी पीनी है सबको। हाँ, नए कंपनीज आएंगे ही। तो उसमें आई थिंक सो कॉफी में एक है, कॉफी में आई जस्ट फॉरगॉट द कंपनीज नेम। मैं काफी पहले उसको मैं ट्रेड किया था, बाई करके फिर मैंने सेल किया था, उसके बाद काफी बड़ा था। फिर एक इंस्टेंट कॉफी का एक नाम कंपनी का, आई जस्ट फॉरगॉट इट। ये दो कंपनीज से लिख के रखने में बेनिफिट है। आई विल जस्ट मैसेज यू दोस कंपनीज ऑन लेटर नो स्टेज। मैं प्रॉब्लम। 2 दिन पहले ही रिसर्च कर रहा था, पर अभी भी रिसर्च पूरा नहीं हुआ है। नहीं, नेस्ले भी तो अनदर एक थिंग इज, कॉफी और नूडल्स में हम बोल सकते हैं कि भाई। अब बात है, देखिए बात है, पर कंपनी एक चीज अभी देखिए, आप कौन से प्राइस में स्टॉक खरीदते हो ना, वो काफी वैल्यू मैटर करता है। हम्म। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनी लाइक एशियन पेंट्स। अगर हम एशियन पेंट्स का लास्ट 4 5 साल का रिटर्न देखे, तो इट इज जीरो। नेगेटिव रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। हाँ, एंड देयर वर सम वेरी इंटेलिजेंट PMS people who used to come and tell के बाई एट एनी प्राइस। वो मैं कहता हूं, अगर आप ताजमहल भी बेच रहे हो, पर वो एक सही प्राइस पे होना चाहिए। उससे महंगे प्राइस पे आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो बाई एट एनी प्राइस का जो कंसेप्ट है ना, ये सबसे गलत कंसेप्ट है। आप मानोगे, जो 2000 में जो विप्रो का हाई बना था, वो विप्रो का हाई टूटने में दूसरे 20 साल निकल गए। मतलब अगर आपने वो हाई प्राइस पे अगर खरीदा होता विप्रो के शेयर, तो आपको एफडी के भी रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे वो 20 साल में। हम्म। सो ऑल दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बाई एट एनी प्राइस, यू आर डेड। यू आर डेड मीट फॉर एवरीवन। आप नहीं खरीद सकते हो कंपनी, क्योंकि तकलीफ क्या होती है, आप हमेशा सोचिए, आप 1 रुपए जहां डाल रहे हो, वो 1 रुपया बढ़ नहीं रहा है ना, आपका कैपिटल ब्लॉक्ड है वहां पे। हम्म। वही 1 रुपए जो अच्छे खासे ग्रो कंपनी में विच यू आर हैविंग एट अ चीप प्राइस, या कोई मीडियम रेंज प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप वो 1 रुपए का 2 रुपए कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या, 1 रुपए आप निकल भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वेरी बाई एट गुड एनी पॉइंट। प्राइस इज एज अ कंसेप्ट इज रॉन्ग। तो उसके वजह से क्या है कि थोड़े एफएमसीजी कंपनीज का थोड़ा सा अर्निंग्स का जो है, वो इट नीड्स टू बी लिटिल बिट टेपर्ड ऑफ, जो अगले 6 7 महीने में हो सकता है प्रोबेबिलिटी। बट आफ्टर दैट इज इट इज अ गुड ग्रोथ फॉर देम।
अभी सेक्टर्स को छोड़ देते हैं, ऐसे स्टॉक जो कि काफी गिरे हैं, जिसमें काफी करेक्शन हुआ हो, वैसा कोई स्टॉक आप अगर नाम लेना चाहते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टॉक शो, देन वी विल ओपन हैव अ ओपन माइक सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। कुछ मतलब रैंडम किसी भी इंडेक्स से या किसी भी सेक्टर से कुछ ऐसे स्टॉक जो आपको लग रहे हो, जो हम वॉच लिस्ट में रखें। अगेन आई लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर कि भाई हम जो लोग ना जो नाम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं वो खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप प्रॉपर रिसर्च करो, उसके चार्ट देखो, उसका फंडामेंटल स्टडी करो, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करो, और फिर उस पे आपको अगर एक्शन लेना है तो लीजिए। ये सिर्फ हम जो नाम दे रहे हैं वो वॉच लिस्ट में रखने के लिए दे रहे हैं। दीज आर ओनली टू कीप इन द वॉच लिस्ट, स्टडी देम फर्दर, स्टडी देयर फंडामेंटल, स्टडी देयर बैलेंस शीट्स एंड लुक एट देयर टेक्निकल चार्ट्स। रेनी जी फंडामेंटल्स की बात करेंगे, मैं चार्ट्स की बात करूंगा। राइट, ये जो लोग जिन्होंने हम दोनों को सुना है वो जानते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा उस पर स्टडी करने के बाद आप खुद आपका खुद का डिसीजन लीजिए तो बेहतर रहेगा। वी आर जस्ट suggesting some names which you can study further, you can keep in the watch list. Correct me if I'm wrong, Reni ji. वेल एक्चुअली मैं जब मैं स्टॉक रेकमेंड करता हूँ, एक चीज देखिए, मैं वो स्टॉक में रुक सकता हूँ क्योंकि मैं उस स्टॉक के बारे में सब कुछ पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए अगर बुरा वक्त भी आ रहा है ना, तो मुझे पता है ये बुरा वक्त टेम्पररी होगा, Correct. उसके बाद मेरा स्टॉक चलने ही वाला है। वो कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब आप खुद स्टॉक के बारे में ज्यादा बैठ के रिसर्च स्टडी करो। करते हो। हाँ, और रिसर्च करने में ऐसे देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कंपनी जो आपको इजीली समझ आ जाए वो कंपनी में आपको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको पता है मारुति कार बेच रही है, कार बेच के पैसे कमा रही है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। जहां पे आपको कैश फ्लो दिख रहा है, हमेशा हर कंपनी में आप देखिए कैश फ्लो कितना आ रहा है। जहां पे कैश फ्लो अच्छी तरह आ रहा है, वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। सही प्राइस पे आपको मिल रहा है, आप इन्वेस्ट कीजिए। उसमें कुछ कंपनीज है जिसपे मेरी नजर अभी बनी हुई बैठी है। एक कंपनी है अमर राजा, अमर राजा बैटरीज। काफी अच्छा है क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंक्रीज बढ़ रहा है, तो फिर नेचुरली द बैटरीज रिक्वायर्ड आर फार मोर हायर। ये एक कंपनी है। दूसरी कंपनी जो मैंने पहले भी बताया है, एच बी एल इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी भी काफी अच्छी है। दिस मेक्स बैटरीज फॉर सबमरीन्स एंड अदर प्लेसेस। और अलग सा दूसरा, इट इज वन ऑफ द वेंडर फॉर कवच सिस्टम। कवच का टोटल एलोकेशन कम से कम 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक जाना चाहिए। रेलवेज में जो देखो। विच हाँ विच विल टेक 3-4 years टू फ्रूटिफाई। बट वो जितना भी हो रहा है वो ये कंपनीज को बेनिफिट है। कवच है, फिर कर्नेक्स माइक्रो है। माइक्रो। हाँ, ये सब का सारे कंपनीज को बेनिफिट है इसमें से कंप्लीटली। और अगर मैं एक छोटा सा मेरी बात भी कर दूं, मेरी बुक की बात भी कर दूं यहाँ पे, तो अगर आपको रिसर्च कोई स्टॉक करना है तो ये आप बुक भी पढ़ सकते हैं मेरी, द एपिक कैंडल्स वे टू वेल्थ क्रिएशन। इसमें मैंने अच्छी तरह समझाया है कि भाई कैसे एक फंडामेंटल रिसर्च की जाती है स्टॉक की, हाउ टू रिसर्च इट टेक्निकली, और फिर कैसे आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। ये सब चीज़ें ये बुक में सिखाई गई है, मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और आप हमारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ये बुक आपको खरीदनी है तो। HBL इंजीनियरिंग, कर्नेक्स हो गया। इसके अलावा कोई PSU स्टॉक आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसमें काफी करेक्शन हो गया और जिसकी डायरेक्शन ग्रोथ आपको अच्छी लग रही है, रैनी जी? पीएसयू स्टॉक्स में देखिए, मेरे पास पीएसयू स्टॉक्स में मैं कोल इंडिया और मॉइल मैं देखूंगा, क्योंकि मैग्नीज ओर का इंक्रीज बढ़ रहा है। तो द ओके। कंपनीज हैव करेक्टेड 40% फ्रॉम देयर टॉप हाइस। तो हम्म। 10-15% तो आराम से दे सकते हैं ये कमाने के लिए। ये और दोनों ये कंपनीज इनका आराम से। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है एट या CMB। डिविडेंड डील काफी अच्छा है। दूसरा एक कंपनी है, वो तो काफी चीप मैंने दिया था, आप शायद जानते भी होंगे। फुडको करके कंपनी, जब 18 या 30 रुपए के नीचे था, मैंने सबको अब कहा था हमने कि ये कंपनी पहले, आप उठा। शायद पहले हमारे टॉक शो में ही इस पे बात की थी। हाँ, मैंने कहा था कि ये कंपनी आप उठा लीजिए उस टाइम पे। पर अभी के प्राइस पे भी अगर 170 180 के आसपास ये कंपनी मिलती है, तो आप लेके रख सकते हो। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में दिस कंपनी इज हैविंग अ लार्जर मार्केट, इट विल हैव अ लार्जर मार्केट। इट बिल्डरों के साथ इनका टाई अप अच्छा है, तो ये ग्रोथ दे सकती है। मतलब अगर 170 से भी अगर इसको 300 350 जाना है तो टाइम नहीं लगेगा। बट बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी, उसके थोड़े फिटफॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि सरकारी लोगों का अभी भी रवैया तो चलन बदला नहीं है।
कोल इंडिया इज वन सच कंपनी। बैंक में आप एसबीआई देख सकते हो, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन होने के बाद। ये कुछ कंपनीज है जो आप दे सकते हो। डिफेंस में अगर आपका मजगांव डॉक है और कोची शिपयार्ड है, ये दोनों देख सकते हो। बट थोड़ा सा और करेक्शन ये दोनों में आना जरूरी है। सेम फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी करेक्शन आना जरूरी है। रीजन क्या है कि देखिए, कैपेक्स आप कितना भी कर लीजिए, डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम पे डिलीवरी करना, ये बहुत जरूरी होता है। सो द कंपनीज दैट कांट डिलीवर ऑन टाइम ना, दैट इज वेस्टिंग इट्स मनी फॉर यू और फॉर मी एज वेल। तो डिलीवरेबल्स बहुत होना जरूरी है। ऑर्डर्स तो मिल जाएंगे, 50,000, 1 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का ऑर्डर सरकार दे देगी, पर सरकार को डिलीवरेबल्स भी टाइमली चाहिए होता है। Hmm. ऐसा है। Right, Rani. Thank you for your valuable inputs about the budget. So, some parting words about the budget. उसके बाद हम we can have an open mic, or people can ask the questions in the chat box, जहाँ पे हम लोग उनको आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो anything else that you want to say on parting notes? या मैं ये कहूंगा कि कभी भी बजट को सीरियसली मत लिया कीजिए। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट एक बात समझिए। आपका बजट जो है वो एक फॉर्मुलेशन प्लान होता है। जिस तरह हम घर का बजट बनाता है, वो एक जरूरी होता है एक दिशा देने के लिए। पर वो दिशा में चलना वो हमारे ऊपर है। एक बार दिशा हमें मिल गया है कि हाँ ये दिशा में मुझे चलना है, तो बजट भी उसी तरह होती है। पर बाद में चलना तो हमें ही होता है। तो कोई भी बजट को उतना सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का भी अपना काम है। एक चीज देखिए, हमसे वो कुछ पैसा ले रही है तो देश की उन्नति में ही पैसा लगा रहे हैं वो लोग। देश की उन्नति काफी सारी डिफेंस है। कुछ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जहाँ पे फेल हुआ क्रॉप हो वहां पे भी पैसा लगाना पड़ता है। तो सरकार को ये सब बना के बैलेंस करके चलना पड़ता है। हमें हमेशा लोगों का एक कंप्लेंट रहता है कि भैया मैं ही पे क्यों कर रहा हूँ, मैं ही पे क्यों कर रहा हूँ। पर आप सोचिए, आप पे इसलिए कर रहे हो कि आप कमा रहे हो। और आप कमा इसलिए रहे हो कि सरकार ने उस तरह का पूरा व्यू रचना किया हुआ है, एक एनवायरनमेंट आपको दिया हुआ है कमाने के लिए। कुछ लोगों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, वहां पे शायद थोड़ी तकलीफ रहेगी तो थोड़े दिनों बाद। तो बजट वही तकलीफ दूर करने के लिए बनाया हुआ था। तो ये बजट भी काफी अच्छा बजट था, नो डाउट अबाउट इट। आपको कुछ लोग मिलेंगे, मैंने बोला कि उनको वो बजट खराब भी लगेगा। ये फिल्म की तरह ही है, फिल्म में दो लोग जाते, किसी लोगों को फिल्म पसंद आता है, किसी लोगों को नहीं पसंद आता। पर काफी अच्छा बजट है, दिशा है बजट में। और आगे एक चीज हमने जो मिस किया, वो शायद लोगों की ध्यान में भी नहीं हुआ। निर्मला जी ने कहा था कि एक हफ्ते में आई एम ब्रिंगिंग यू द न्यू इनकम टैक्स रूल। Hmm. ओके। सो वो पूरा स्ट्रक्चर कर रहा है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द थिंग। अगर एक चेंजेस आ रहा है हमेशा कोई भी पैटर्न में, काफी Hmm. सारे जो लॉस थे, जो इनकम टैक्स और जीएसटी के, उसको डीक्रिमिनलाइज किया है। डीक्रिमिनलाइज करने की वजह से क्या है कि डीक्रिमिनलाइज मतलब उसमें क्रिमिनल सजा नहीं होता है, इकोनॉमिक सजा होती है, क्रिमिनल सजा नहीं होती है। जैसे कि जेल का वो सब। तो ये सब एक सही कदम है एक दिशा की तरफ। हाँ, पर धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है, वो मैं देख सकता हूँ। देर इज वन रेनी जॉर्ज फैन जो कि मुझे काफी टाइम से बोल रहा था कि भाई टॉक शो आपने सीजन 2 चालू किया तो रेनी जी को कब लेके आ रहे हैं। कार्तिक इज हियर विद अस। कार्तिक, जो आपने लिख के भेजा, इफ यू वांट टू आस्क रेनी एनी क्वेश्चन और इफ यू वांट टू से समथिंग। Yeah, good evening, Reni sir. Thanks, Visalji, for arranging it. I mean, I have attended your very first meeting with Visalji. I mean, it was a very helpful and it was a good insight that you have given some of the stocks like, I mean, Jyoti Labs, Ambiga Cottons, I mean, BSE I have purchased. I mean, it is really, it is a good and even a multi-bagger returns to me. Appreciate your vision on that one. It's a nice stock selections. And then for the budget, I mean, it's a good budget. I mean, for me, the announcement during the budget, like, I mean, capital expenditures, I mean, the increase in the 10% outlay, that it was not maybe the announced. I mean, people were, I mean, looking for it. Where it is the capital expenditures. Then, I mean, the media asked at the bottom, I mean, after the almost close to the end of the meeting, well, end of the market,
it is all flashing. It is an 11.2. I mean, 10% increase would have been like, I mean, some announcement. And also the railways. I mean, people are expecting for the railways some announcements. I mean, something like, I mean, because of many collisions of the railways, the Kavach systems increase in budget would have been, I mean, that it is my disappointing for me. So where, I mean, it is maybe now the railway stocks are getting corrected. I mean, the wagons like Titagar, Jupiter wagons, Texmogo. I mean, it is whether it is whenever, I mean, if it is comes down at a good to buy, because still I say the outlay is still 2.52 lakhs crores. And then second question, it is the Jain irrigation. So how is the management of the Jain irrigation earlier? Maybe 2-3 years before, there is a lot of issues or anything, maybe because of the high debt issues and expansion into agri business. And now how is the business doing? Thank you, sir. Okay, Karthik, thank you very much for speaking so highly of me, but I am not that much intelligent a guy. I am just a normal guy. बस मैं जो चीज सही करता हूँ वो सही तरीके से करता हूँ. I just look into the companies. I try to study the companies very well, and that takes a lot of time of mine. Regarding, yeah, people were expecting some outlays in the railway budget, but that is always, people are always expecting. Oh, expectation कभी कम नहीं होता है. Expectations never cease. So there has been expectations from the government of spending more outlay towards the Kavach system. The government has made it clear that they intend to transmit every structure, Kavach, every train has to be fitted with the Kavach system. But a finance minister always juggles with balls. She has to keep on juggling. So somewhere she had to make some adjustment. When she was doing the outlay, she had to control many expenditures. And already fiscal deficit, from bringing it to 4.4 from 4.8 needs certain decision making. Kavach, the orders for Kavach, I think so. They will be coming in bits and parts, but it will be coming for sure. It will be coming for sure. Next 2-3 years, we may see most of the trains covered by Kavach. So the companies who are into that, 2-3 companies are there. Among them, the prime is HBL Engineering and Karnex Microsystem. They are going to benefit. Yeah, they are going to benefit out of this. So these companies are surely going to benefit. It will take its own time, because right now also we may go through 1 or 2 small market corrections that can be 5 to 10%. At that time, some companies will appear cheap. At that time, you can buy this company. Regarding Jain irrigation, what you asked, well, Jain irrigation for me is allocation that I would not be afraid of allocating 3 to 4% or just a minimum 2% of my portfolio to Jain irrigation. As I have been looking into the company since last 1 year, they have reduced their debt considerably. They are trying to grow. Yeah, I need to check their last con call with investors presentation. I have not gone through it because I did not get the time. That happened day before yesterday only, on 31st, I think so. There was the investor presentation that I need to go through. But it is a company where you can take little bit of risk. You need to understand every company what we select. I always have a penchant to look at their products. Jain Irrigation makes one of the best high density polypropylene HDP pipes on earth. Their pipes are pretty sturdy and a good quality pipes they manufacture. Apart from that, they are into drip irrigation, so they have a good market share. There also they are covering. So this company, NetFM is another company, but it is into unlisted space. And the managing director of NetFM is a good friend of mine. So I come to know about how much the orders are there. The outlay by the government towards agriculture has been pretty good. So this is ultimately going to benefit Jain Irrigation also. So next 6 months, we can keep it in a watch list, particularly if someone is feeling that I am not too much comfortable about this company. You can keep a watch list, or you can buy some quantities just to keep a track on that. So that way also you come to know about what are the changes that is happening. In the last quarter also, the changes were visible, but not too much visible. That I can come to know in the next 1 or 2 quarters only. But yeah, these companies will surely give you money. Keeping a tracking quantity of some stocks is very important, because out of sight is out of mind. Me and Rennie will give you our personal example. We were talking about a company called Elecon, which is a Gujarat-based, Vidyanagar-based company. And
it so happened that both of us forget about it for a while. And then, Rennie, if you remember, if you can tell them Yeah, about that story. yeah. We were, I think so. We were going in a car where we were coming from somewhere, and suddenly I identified Alicon, and when it was trading around 35 rupees. I studied everything, and I thought, okay, let me check out. I will buy it. But after that, I just forgot it. I even didn't buy the tracking codes that I needed. And from 35, the next time the price I was seeing, it was around 635 or something. And I queued with Vishal. Yeah, bloody this went to 635. It was a 10 bagger for me to miss out. And the reason why I was sad for missing it, I did much more research on those companies. For 6 months, I had done the research, and I thought this company will be doing pretty good in coming periods, and it did pretty good. So even if you are tracking some company, I always advise buy some tracking quantities. That because it stock is like that. You have a universe of 7,000 companies, and out of sight is out of mind. Yes. Pretty true. Yeah, yeah. One more stock. I mean, the Quadrant. I mean, the Kavach system. It's a newly listed company. Maybe you can have a look into it, sir. I mean, both of you. I think it Which one, starts Karthik? the Quadrant Tech, something like that. I bought some tracking quantity. I need to That is study about Quadrant. that company. Yeah, Quadrant. Quadrant. I mean, it is. I mean, newly listed, but it is having some orders. I mean, it is like Kernex Microsystem also. It is close to the same kind of. I mean, this one. I mean, I did not go into the con calls and other things because it's a newly listed. Just sir, you can look into it, and maybe and later. I mean, you can give your idea onto that companies also. We can And look also, into it. Rennie sir yeah, will ask Rennie sir to look into it and come back with his opinion about the same. yeah, There is a yes. Sure, sure. question from Mahesh. Thank you, sir. You want to say something else, Rennie, about it? No, I have read about that company. Well, last I was reading some books at that time. But I didn't go into particular research in that. I thought I would do it later because already I was having HBL engineering in my portfolio. So I didn't want to feel one more company doing the same thing and same purpose. I did not check the market cap or anything. Yeah, I may do at later on stage. That depends upon me. Because, doing research is also one of the toughest things. You spend a lot of time on that. There is one question from Mahesh Ahuja ji. He's talking about any views on life sciences companies like GLS or Sai Life Sciences, etc. Both the companies I have never studied. Yeah, I would go for one. Rivolis is there. That is Glenmark Life Sciences. I Which think kind of he's it is? talking about Glenmark Life Yeah, Sciences only, that's GLS. correct. Yeah, GLS is Glenmark. Okay. GLS is Glenmark. Yeah, that's a good company. That's a good company. Pharma, I think so. Next 1 or 2 years, pharma companies will give a good return. 20-25% returns is not away from pharma. Pharma companies are going to give API. One company that I identified, and I think so. We talked about also with Vishal Balia. It was a personal. That is PPL, Piramal Pharma, PPL Pharma, Hmm. which is into contract CDMO structure, that is contract manufacturing, and that the company has corrected. I selected that company around, I think so, it was 70 or 80 rupees. I had bought my clients from 70, 80 rupees. I have been buying till 120, 130 rupees. Right now, I am holding it. The company went till 275 or something like that, and has corrected to 230. So around 200, this company is pretty good, PPL Pharma. So CDMO and contract manufacturing, it is going to benefit out of that. Revelis, that is GLS Life Sciences is a good company. You can keep invested money. If you have invested it, you can just hold it. Yeah, but these companies, the life sciences companies will take around 1 or 2, 3 years to give you a meaningful return out of that. But these are good companies, whatever you talked about. You can invest in them. Yeah, I mean, stay invested is what my plan is. Yeah. Then I think so. It is a good decision that you made. These companies will surely give you the return. I always tell in the equity market, more than the return on capital, it is the return of capital is far more important. That is your safety of the capital is far more Absolutely. important on this. Absolutely. Yeah, there's one more. Sai Life Sciences, a recently listed company. I'm not sure. I've not done any research on that. Any idea?
on Sai Life Sciences? Well, I haven't studied new companies because many IPOs come, but normally when you study the company, your mind always gets blurred when you are talking about an IPO company. I would always tell wait and watch, check out the company, let the company perform 1 or 2 years, and then we can take a decision. That's correct. One thing we need to remove from our structure mind is the FOMO, fear of missing out. Yeah. You will be missing out many things. Same like look, right now I am sitting in front of the screen. That means someone guy who is in Switzerland, he might be doing skiing. Uh, I, Mhm. I will be missing skiing if I am thinking about that. But naturally, I Right. am sitting here and I am doing those things. So There fear of always missing will out be is opportunities. fear of missing out is completely a problematic thing. If that you remove it, let the company come into the equity market, let the company stabilize, let us look into their products, how they are delivering the cash flow. So after that, we can take the decisions for the same. There are many companies that are already invested and that are very good. That can be looked into. Yeah, makes sense. Yeah. Thank you, Ranil. Thank you. Thank you. So tomorrow, Reni is not tomorrow. In few hours, Reni is having a big event, which is Vadodara Marathon. So all Good the luck, best for Ranil. that, Mr. Reni. And if any of you don't have any questions, we can wind up the show over here. Good luck, Thank you, Ranil. Vishal. I Anyone have has one any questions? question. Yeah. I have one question. Yes, Yeah, sir. carry on. May I? Yeah, Yeah. please, Mr. Parmar. Yeah. Good evening, sir. This is Hemant Parmar calling from Mumbai. Just I would like to know how do you see this budget for realty sector? I think we missed that. A Yeah, good realty question. sector, and which are the good stocks to buy from your point of view? On the Which stocks you will realities, recommend? yeah, on the realities structure, first and the foremost, uh, this in this budget, I have seen one thing. Company is focused on affordable housing. So affordable housing is one of the criteria. They are thinking, and the Prime Minister has a vision that not a single Indian should stay on the pavement. So he has a grand vision of giving house to everyone. So in this reality, I would like to look at two companies. One company which is mostly structured around Mumbai. It is a company well managed and they have good products. Even the schemes that is Rustomji. The company has corrected nicely. I think so 20-30% it has corrected. So that is a good company that you can keep it and it is going to give you at least 100% return in next 2-3 years probably. Another company is Hudco. Hudco is a company, Hudco is into major finances and completion of projects. So Hudco can be taken. If we look at the price, for Hudco also, it has corrected 30-40%. So avenues are there also. Apart from that, in reality company, there is one Ashiana Housing. Ashiana Housing is managed by very good, able people. They are into affordable housing. Their ticket size of housing is less than 50 lakhs rupees. They do a project, they complete the project, then they move to the next project. So that's a good company, Ashiana Housing. Ashiana Housing can be a part of your portfolio as the company is managed by very good people. And in reality, I mean, ethical management, companies with ethical management are very difficult to find. And if you find one, you can hold on to them. Yeah, Vishal, when you talked about this, another company that I would like to tell is Prestige Estates, which is Yes. headquartered near Bangalore. It is a good company. If you are getting at a good price, you can invest in Prestige Estates also. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Not a problem, sir. So, if there is no more question, we can wind up the show. We would like to thank you, Reni ji, for being part of this talk show. You are one of the most requested guests for us, and I know that the people who are not able to join will have lot more views on the YouTube. We will post this video on YouTube. Thanks for your inputs about the budget, about investment, behavioral finance, as well as the companies that would interest you in for long-term investment. Thank you, Vishal. It is always a privilege to come and chat with you.
because I always find it enterprising when someone questions us. Na, it always challenges me also to research something bit more out of that company. Even after 100% research, some mistakes happen. And stock market is a place where out of 10 stocks, if 6 stocks work, na, you are one of the best investors. Even after 4 of them are duds or mistakes. So it is always a learning process. In equity market, you can't sit and you can't be a master. Every day brings new challenges and new work studies. Thank you very much. I will end the show here. And if anyone has any questions about any company or anything, you can send them to me in PM or in the group, and we will definitely try to get them to Rainy ji. So good night and all the best for your event, Rainy ji. Thank you, Thank thank you, you. Yes, thank sir. you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. I'll close the Thank you. meeting. Thank you. Bye. Bye. Goodbye. Thank you. Goodbye, everyone. Thanks for being with us. Goodbye, everyone. Yeah, goodbye.